الرحمن الرحیم۔ الیکٹرانکس دنیا کے دوستوں کو نقی چاند کا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف الیکٹرانکس۔ آج کے پروگرام میں شامل ہے کراچی چیمبر آف کامرس میں پی ٹی اے کے چیئرمین کا دورہ اور دنیا کی معروف برانڈ کے ڈسٹریبیوٹر کے درمیان جنگ شدت کی کس لیے۔ تو چلتے ہیں اپنی ٹاپ اسٹوری کی جانب۔ پاکستان میں پی ٹی اے کے سربراہ میجر جنرل ریٹائر امیر عظیم باجوہ صاحب نے کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر ادریس میمن کی دعوت پہ کراچی چیمبر میں بزنس مینس کے ساتھ اپنا ایک تعارفی پروگرام یا آگاہی پروگرام منعقد کیا اور ان سے گیٹ ٹوگیدر کی، ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ اس موقع پہ جتنے زونگ، موبیلنگ، یو فون، پی ٹی سی ایل اور دیگر جو بھی ادارے ٹیلی نور کے ہیڈز موجود تھے، اس میں کراچی چیمبر آف کامرس کے ادریس میمن کی دعوت پہ جو کراچی چیمبر میں جو بڑے اہم شخصیات تھیں وہ موجود تھیں۔ یہاں میں تھوڑی سی ایک بات اب دوستوں کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں کہ ادریس میمن کا تعلق بیسیکلی پاکستان کی موبائل انڈسٹری کے ساتھ ساتھ الیکٹرانکس فیلڈ سے رہا ہے، اور آج بھی وہ اس فیلڈ میں ان کی اپنی کاروباری جگہ الیکٹرانکس مارکیٹ میں ہے، اسی طرح اپنا کاروبار کو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ادریس میمن جو معاشی مسئلے ہیں ڈیلرز کے الیکٹرانکس فیلڈ کے، اس سے بھی بخوبی واقف ہیں، اور وہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ شہریوں کو پاکستان اور بالخصوص کراچی کے شہریوں کو کیا مشکلات کس ادارے سے آ رہی ہیں، اس کا ازالہ کس طرح ہو سکتا ہے، اس پہ قابو کس طرح پایا جا سکتا ہے، اس میں کمی کس طرح کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے وہ شب و روز محنت کر رہے ہیں۔ جب سے کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر بنے ہیں، گزشتہ سال 1 اکتوبر سے انہوں نے چارج سنبھالا ہے، آج تک وہ ایک دن میں کئی گھنٹے مختلف شعبہ جات کے ساتھ پاکستان کی معروف ادارے ہوں یا چھوٹے ادارے ہوں، ان کے ساتھ ان کی میٹنگ جاری رہتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی تھی جس کے تحت انہوں نے میجر صاحب کو بلایا، میجر جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کو بلایا اور اپنے مسئلے مسائل سے آگاہ کیا۔ یہاں اس موقع پہ یہ بھی خاص بات ہے کہ اس میں الیکٹرانکس فیلڈ کی جو معروف شخصیت ہیں، فیصل موتی صاحب جو یونائٹڈ موبائلز کے سی ای او ہیں، اسی طرح کور ٹیک اور انرکام کے جو دیکھا جائے سی ای او ہیں، یحییٰ سلطان، وہ بھی موجود تھے۔ اسی طرح یہ ناچیز بھی اس میٹنگ میں موجود تھا۔ اس میں کئی بات جو ان کی جو آگاہی دی گئی، انہوں نے اس کا جو ہے برملا اظہار بھی کیا۔ ان میں جو اہم چیزیں ہیں جس میں سسٹم یعنی سگنل، مختلف جو سولر سسٹم ہوتے ہیں، یعنی جو ٹیلی نور ہے، وارد ہے یا زونگ ہے، اور یو فون ہے یا پی ٹی سی ایل ہے، انٹرنیٹ سسٹم ہے، اس کے متعلق جو شکایتیں انہوں نے اس کو علم میں لائے کہ کس علاقے میں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان بھر کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن کیونکہ بیسیکلی کراچی چیمبر آف کامرس کراچی کے نمائندہ تاجروں کا ایک وہ ادارہ ہے جو پاکستان کے سارے جو چیمبر ہیں وہ ایک طرف ہیں، یہاں پر ان کی تعداد بہت بڑی ہے بزنس مینوں کی، اور ہر زبان اور ہر مذہب کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ یہاں انہوں نے اس بات کا بھی انہیں آگاہی دی گئی کہ جناب ان کی تعریف کی گئی، ان کی ٹیم کی، نعمان خالد صاحب کی تعریف کی گئی بالخصوص۔ انہوں نے یہ بھی انہیں بتایا گیا کہ جی یہ جو کام کر رہے ہیں، پی ٹی اے کے چیئرمین نے یہ آگاہی بھی دی کہ ہم جو لوگ ایکسٹرا سم یعنی جو مختلف سموں کا معاملہ ہو یا آئی ایم آئی نمبر جو کئی موبائل ڈیوائس پر استعمال ہو رہے ہیں، مختلف 2 نمبری کر کے
उसके अजाले के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं और लोगों के खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे। बड़ी तादाद में पीटीए की टीम छापे मारेगी। वो अब ट्रेस कर रहे हैं उन लिंक को, उन जगहों को, उन ब्रांडों को जिसके तहत मुख्तलिफ, जैसे बार फ़ोन के स्मार्टफोन में लोगों ने पीटीए अप्रूव की वजह से वो नंबर चढ़ा देते हैं उस पर, तो उसके लिए उन्हें आगाही दी गई थी, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया। उन्होंने इस बात पर उनको मुबारकबाद भी दी गई कि उन्होंने ये भी बताया कि जब आप टाइप अप्रूवल के लिए किसी भी ब्रांड के लिए ऑनलाइन कर दिया है, हम जो हफ्तों का काम है वो घंटों में करके उसी दिन ही आपको टाइप अप्रूवल दे देते हैं ताकि सिस्टम ना रुके। उन्हें बताया गया कि ये 26 असेंबलिंग प्लांट जो आपने मेहनत से पीटीए ने कायम किए थे, वो इन दिनों एलसी ना ऑन होने के बायस वो क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। हज़ारों रोज़गार जो है वो बेरोज़गारी में तब्दील होने जा रहे हैं। यानी लोग गेट तक पहुंच चुके हैं। जब रॉ मटेरियल की एलसी नहीं खुलेगी तो ऑटोमेटिक वो प्लांट बंद हो जाएंगे, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। उन्हें बताया गया कि आप अपनी सिफारिशात इस मामले में भेजें। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इदरीस मेमन ने भी इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो इसके लिए जो है फौरी तौर पर लेटर भी लिखेंगे। अपने जो काम हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का या किसी का भी, हम हर एक के लिए हाजिर हैं और वो अमली तौर पे ये काम करते भी हैं। इसी के साथ उनके जो मेन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के जो रूए रवा हैं, उनके साथी, उनके दोस्त और लॉ एंड ऑर्डर को पूरी कराची में डील कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, वो अमीन मेमन साहब, उनका तस्करा ना किया जाए तो ये भी ज़्यादती है। उसकी वजह है कि इन्होंने बहुत सारे मामला कराची के ताजरों के हल किए हैं, ज़ाती बुनियादों पर भी, चैम्बर की बुनियादों पर भी, और वो बहरहाल कर रहे हैं। तो इदरीस मेमन साहब, और उन्हें यह भी बताया गया स्पेशली कि जो आप अपना प्रपोज़ल दें, एक्सपोर्ट की बात करते हैं, मोबाइल की एक्सपोर्ट किस तरह की जाए, बड़े किस तरह, तो उन्हें बताया गया कि इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और वियतनाम में क्या परसेंटेज दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोर्ट करने में, पाकिस्तान में क्या किया जाता है, उसके मुतालिक जब 10.8 से लेके 12 तक उनको आदाद शुमार बताए गए तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए अपनी तजवीज़ गवर्नमेंट को रवाना करेंगे। एक बड़े नफीस शख्सियत के मालिक थे पीटीए के सरबराह, और बात उन्होंने खुल मिल के बात की, बिल्कुल किसी किस्म की झिझक, किसी किस्म की कोई दूरी महसूस नहीं हो रही थी। हर चीज़ का जवाब दिया, हर सवाल का। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो दोस्त थे इदरीस मेमन साहब समेत, और जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, जो मजमुई कमेटी थी, नकी साहब थे, जितने हमारे मेहरबान थे, उन सब ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें शील्ड पेश की गई कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से। इसी तरह गुलदस्ता भी पेश किया गया। उन्हें कराची चैम्बर का जो बाहर जो विज़िट था, जिसमें उन्होंने, जिस पे तहरीर है जिसको कायम करने की, उसको भी देखा, तस्वीरें बनाई गई और बड़ी खुशी का इजहार किया गया। याहिया सुल्तान, फैसल मोती, इन्होंने खिताब भी किया, अपने सवालात उनसे किए और उनके साथ तस्वीरें बनाई। एक बड़ा अच्छा सिलसिला है। कराची चैम्बर हमेशा इस मामले में बहुत आगाही के साथ आगाह रहता है, जो भी मसले मसाइल हैं, और उसको उजागर करता है। दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी बात लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। पाकिस्तान में दुनिया की मारूफ ब्रांड जिसे हम कहते हैं बहुत टॉप पर है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, बहुत सेल के मामले में भी बहुत ज़बरदस्त काम करती रही है, और बहुत सारे उस ब्रांड से कुछ दोस्तों को, कुछ जिसे हम एमडी कहते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को गाए बगाए कुछ ना कुछ छोटी मोटी शिकायतें होती रहती हैं। इसके बावजूद कि वो इदारा, वो मतलब जो ब्रांड है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ और डीलर्स के साथ बहरहाल कम, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ उसकी मीटिंग हमेशा जारी रहती है। आजकल एक नई जंग शुरू हो चुकी है इनके दरमियान, डिस्ट्रीब्यूटर्स मारूफ ब्रांड के, कि हर डिस्ट्रीब्यूटर अपनी मर्ज़ी की डील अनाउंस कर रहा है और अपनी मर्ज़ी के रेट पे
सामान फ़रोख्त कर रहा है। अगर मिसाल के तौर पे किसी के पास एक मॉडल है मौजूद, वो उसमें मर्ज़ी के रेट से डील दे रहा है। दूसरे के पास अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर वो उसके 2000 पीस हैं और किसी के पास 500 पीस हैं, किसी के पास 300 पीस, वो किल हो जाएं, लेकिन मेरे 2000 पीस वाले मैं अपनी मर्ज़ी का दे रहा हूँ तो वो निकल जाएं। तो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, मर्ज़ी के हिसाब से कर रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ अंडर हैंड जो है ना काम करने की इत्तलात हैं। हैरत का मकाम ये है कि अगर कोई नहीं करना चाहता तो वो भी लोग हमारे जो डीलर्स हैं या एमडीज जिसको भी कह लें, वो उससे माल नहीं ख़रीदते। उसकी वजह है कि उन्हें मुझे अगर कोई 1% अंडर हैंड दे रहा है, 1 करोड़ के माल पे मुझे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, किसी को कोई डील में 2 लाख मिल रहे हैं, तो वो उस तरफ ही जाएगा ना। अब मॉडल्स के हिसाब से देखना पड़ता है। यहाँ पोजीशन ये है कि एक इदारा जिसका ताल्लुक मिसाल के तौर पे लाहौर से है, दूसरे का ताल्लुक कराची से है, तीसरे का ताल्लुक किसी और से है, तो हर एक भांत भांत की बोलियाँ बोल रहा है। और वही वाली बात है कि ऐसे एक दूसरे से छुपा रहे हैं। मुझे याद आया कि सीसीटीवी कैमरे जहाँ लगे हुए होते हैं वहाँ लिखा हुआ होता है कैमरे की आंख आपको देख रही है। अच्छा, जहाँ हमें पता चलता है किसी इदारे में जाते हैं यार कैमरा लगा हुआ है, तो बिल्कुल सीधे अंदाज में चलते हैं और वो अपने आप को क्लियर करते हैं। हैरत की बात है, ये सब गेम करते हैं, लेकिन अल्लाह तो कैमरों से भी बढ़कर है, उसे तो सब आलिम और गैब है, उसे सब इल्म है। अल्लाह से पर्दा नहीं रखते, बंदों से डरते हैं। तो भाई एक दूसरे की काट नहीं करें, एक दूसरे के साथ मिल के चलें और यूनिटी के साथ चलें, जिससे सेल बढ़े। डिस्ट्रीब्यूटर्स एक दूसरे के मामलात को देखते हैं, अंडर हैंड कुछ काम करते हैं जिससे उन्हें माली नुकसान हो रहा है और माली नुकसान बढ़ता चला जा रहा है एक दूसरे की काट में। अब इदारे को चाहिए कि वो इनकी मॉनिटरिंग करें, उनको चेक एंड बैलेंस करें, ताकि उनको नुकसान कम से कम हो। वो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा अगर ये सब के सब इसी तरह चलता रहा मामला, तो आखिरकार पूरा दरख्त ही नीचे आ जाएगा। बेहतरीन बात यही है कि आप दरख्त को परवरिश करें, दरख्त को पानी दें, इसकी आबियाई करें, ताकि वो तरक्की करके तनावर दरख्त बन जाए। लोगों को सहूलतें दें, लोगों को मॉनिटरिंग करें, अपने ब्रांड को मजबूत कीजिए, ताकि मामलात वो डीलें निकाल देते हैं, मुख्तलिफ जो है वो ऐलान कर देते हैं। अब वो अंडर हैंड भी चल रहा है, डीलें भी चल रही हैं। एक ही मॉडल जो है वो मिसाल के तौर पे वो बेच रहा है 38,000 से कम, और दूसरा जो है वो बेच रहा है 39,000 रुपये का। तो मैं 39,000 वाले से क्यों लूँगा? जो 38 से कम में होगा मैं उससे लूँगा ना भाई। तो डीलर भी कुछ मामलात को बेहतरी की तरफ अपने लेके जाएं, लेकिन लबे लबाब ये है कि मारो ब्रांड को संजीदगी से चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा, वरना वही बात है कि एक प्रोग्राम हम देखते थे, अजब गज़ब करप्शन की अजब कहानी। यहाँ तो अजब कहानी चल रही है डिस्ट्रीब्यूटर्स की, एमडीज की और ब्रांड की। इन तीनों का मजमुआ आपको देखना चाहिए और इसमें फ़ैसला करना चाहिए। बाकी मज़ीद तफसीलात आपको अगले व्लॉग में दूँगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।